Videographer. Deshia, there you are. Hello, ma'am. Good evening. Hello. Hello. How are you? How are you, ma'am? Good, very well. Thank you so much. God's grace. Hug to you. Yeah, the e-hug. The e-hug. Yeah, Yeah. the e-hug. Yeah. Okay. So, ma'am, we'll open the session. Yes. I'll request our regional vice president, Mr. Daniel, to inaugurate the session. Okay. And Daniel, please. Good evening, one and all. ISTD past presidents, President Emeritus, NC members, and all attendees, and also our special guest, Dr. Kiran Bedi. ISTD is doing a lot of learning during this lockdown period. Yes. Not only ISTD head office, but all the regions as well as the chapters are also doing their part. Today, Navi Mumbai is doing, with the help of Dr. Kiran Bedi, a webinar on managing self and working during crisis. Our National President Dr. Nadaraj Rai was supposed to inaugurate this program, but due to his inability to join in the beginning, on his behalf, I declare this webinar being inaugurated. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. And now I request Ms. Jayashree Katkar, who is chairperson of Navi Mumbai chapter, to welcome ma'am on our chapter's behalf. Jayashree, are you there? Jayashree, are you there? Yeah, she is there, but her mic is not connected. It's unmute now. Yes, she is. Can you coordinate with her? Or see, ma'am is there for a not for very long time with us, so we'll see every second, every minute is precious to No, us. I have unmute the mic, so ma'am can speak now, I suppose. So, Jayashree? This is also speaking. Miss Anshul, you take over. Speaking. Yeah. Okay. So on behalf of Navi Mumbai chapter, ISTD Navi Mumbai chapter, I welcome all the participants and our special guest, Kiran Bedi, the super cop, a woman of substance, a name, a brand, whose offbeat tracks and never die attitude has laid down foundation for the women of India, broken the monotony and cherished the explorer, the conqueror, and the fighter within them. So, there you hear the voice, friends. I dare to be Kiran Bedi. And it's always possible, yes, madam, sir. When 7 or 8 years old, Kiran Bedi just meant one mark to me. One mark in my general knowledge answer sheet. But with the passage of time, the meaning and the aspect of being Kiran Bedi evolved within the woman within me. This one number has been synonymous with Kiran Bedi throughout her lifespan as well as my lifespan too. The first lady IPS officer of India who served 35 years consecutively, day in, day out. Believe me, like we always say 24/7, but she's the living legend, proving that 24/7, 35 years consecutively, she served India as one of the topmost IPS officer, first Indian woman to lead all male contingent at Republic Day parade.
first woman and first Indian to be appointed as United Nations Civil Police Advisor. She is first police officer to receive President's Medal for Gallantry for Heroism and Courage, and the first human crane, as she was nicknamed Crane Bedi. Ma'am, you might be remembering, we all, remember and cherish those moments when somebody in India, born like this, wherein even a person of the topmost, status was dealt the same as per the normal citizen of country. So it's the example that you have set, and we are proud of you. Every moment, every deed that you have done, it's an example and life, milestone to all of us. And she was voted, and she is still the most admired and most trusted woman in India, and she is my personal favorite too. And since my childhood, I have followed her like anything. And she won Nobel Peace Prize in 1994 in Asia's Nobel Peace Prize. That was Ramon Magsaysay Award. And see, thankfully, this month, ma'am's birthday was there, 9th of June. And ma'am, wish you a very, very, very happy birthday, belated though. And I will request all the attendees to wish her in the chat box so that we can pass on our wishes to her. And she was born in a family of tennis players. And very thankful to ma'am's parent, Mr. Prakash and Prem Lata Peshavaria. And ma'am is the second child amongst the 4 daughters. And while in school, she became national junior champion at the age of 16. Since childhood or since beginning, she's like this. And at the age of 22, she was ranked India's #1 of her time in tennis. So Dr. Bedi is she's the one who Extended birthday. voted for policing, and she All extended birthday. always stood for power to correct, power to prevent, and power to get things done. And I have so many examples that I can share during this. That one point of time there was a bridge which was to be inaugurated by somebody I will not name out here, and people were just waiting, and they were having some kind of hurdles, but without waiting for anything, because she always worked in favor of or for the welfare of society, for the welfare of nation. She opened up, taking the responsibility, and I think then it was a big The Goa Bridge. So why I'm saying that she always stood for power to correct and power to prevent, wherein she prevented harassment of people wherein they had to take longer route and all. And Dr. Bedi is a law graduate, a master's and PhD scholar with post-doctoral Nehru Fellowship. She has authored several books, and few of them I will name out. I Dare, It's Always Possible. And as she mentions, and she is the one who speaks, and she follows that too. So she has made everything possible, and her book also says it's always possible, creating leadership and many more. So Dr. Bedi has one biopic written on her life by the name Yes, Madam Sir. It was made by an Australian filmmaker, and a recent documentary on her was featured in Nat Geo's Mega Icons. She is running 2 NGOs which reach out to marginalized sections of society in education, skill development in urban slums and rural areas, including prisons also. And if like people might be knowing that when she was IG Tihar jail, she
turned out the prison or the Tihar jail into ashram. So I recently, ma'am, see, I'm carrying this book also, if you can recall. And so there was a meme which says that people are queuing there, and they are saying, if you want to attend the session, and then somebody is saying the session is full, you cannot come inside. So that was the kind of environment you created there, even in the Tihar jail, and that is still a landmark. And as a keen user of technology, Dr. Bedi ma'am has got around 15 million followers on her social networks, and she is having her Twitter handle @the_Kiran Bedi. So all of us, I will just urge and request that we should just follow ma'am, not only physically but virtually also. And ma'am is currently, as we all know, she is Lieutenant Governor of Puducherry. And yeah, one more thing that I would like to share here is it's all so accessible, and which she thrives upon that. अभी सेशन शुरू करो. हाँ ma'am, मन नहीं भर रहा है. Accessible governance, and for that Raj Niwas is becoming People Niwas now. So ma'am, as said, I can go and on and on and on, but it will never end. So over to you. Thank you so much for being here. And as we all know that today's time, it is little challenging for all of us, not only Little नहीं, बहुत ज़्यादा challenging है. Yes, ma'am. And And, let's hear from very ma'am now. challenging. Yeah, let us hear from ma'am. We are being very reasonable to COVID. I ma'am, think COVID. I'll speak in Hindi. I will prefer Hindi क्योंकि मेरा ख्याल है हिंदी better रहेगी. मराठी तो मुझे नहीं आती. नहीं, हिंदी बोलते हैं, मातृभाषा है अपनी. अंशुल, मैं हिंदी में बोलूं? Yeah. मैम अपनी Dr. Korean, Mr. Korean, you understand Hindi? Yes. Lovely. Gurvinder, you also? Yes, ma'am. Hindi and Punjabi. I'm from Amritsar. चलो पंजाबी बोलते फिर. Thank you, ma'am. Lovely. मुझे याद है आपका इवॉल्व स्कूल कुछ साल पहले मैं आई थी और मैंने कहा भी था मैं एक बार फिर से आऊंगी. ये नहीं मालूम था कि आज वर्चुअली आएंगे. ये नहीं मालूम था. आपने सब्जेक्ट दिया है मैनेजिंग सेल्फ एंड वर्किंग ड्यू क्राइसिस. ये आपने सब्जेक्ट दिया है. अगर हम इस पर फोकस करें अगले 20 मिनट में जो मेरे विचार हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग Q&A करेंगे. Q&A है ना? Yes. ठीक है. देखो, सवाल ही उठता है कि हर इंसान, हर एक सिचुएशंस चेंज होती हैं. हम लोग बचपन में होते हैं, स्कूल की सिचुएशन और होती है. वी ऑल ग्रो. हमको पता नहीं चलता हम ग्रो करते हैं, लेकिन मिरर भी नहीं बताता, बिकॉज द होल थिंग वी लिव विद आवरसेल्व्स एंड वी कांट सी द चेंज व्हिच इज गोइंग इनटू अस, बट एक्चुअली वी आर ऑल चेंजिंग एवरी डे. हम लोग रोज सब बदलते हैं. हम वो नहीं रहते हैं जो कल थे. हमारे विचार बदलते हैं, हमारी शक्ल बदलती है, हमारी सेल्स चेंज होते हैं. वी ऑल चेंज बायोलॉजिकली, spiritually, mentally, but change के साथ we have an option to grow mentally and spiritually. COVID एक ऐसी situation आई है जो मेरी व्यू में ये wholesale reflection मांगती है. ये ऐसी चीज है जो तूफान है जिसने हमको सबको जमीन पर गिरा दिया बराबर. जैसे सुनामी आई थी तो उसने सारे पेड़ों को फ्लैट कर दिया, कई बिल्डिंग्स को फ्लैट कर दिया और सारी चीजों को बहा दिया. सारे समुद्र में जो भी कश्तियां थी उनको फेंक दिया. It just flattened everybody. When tsunami came, it flattened everybody. पुडुचेरी में भी सुनामी आई थी तो मुझे मेरे ऑफिसर्स याद करते हैं कि क्या हुआ था उन दिनों में. सो ये एक ऐसी सुनामी आई, तब ये वो सुनामी आई थी जो कि साउथ ईस्ट एशियन में ज्यादा आई थी. जकार्ता को, इंडोनेशिया को, कई लैंड्स को फ्लैट कर गया और सारी पॉपुलेशन को लेके चला गया समुद्र के अंदर. सो व्हाट आई एम सेइंग इज
ये हमारे जीवन का एक फेज आया, इट्स अ फेज ऑफ आवर लाइफ। हमने नहीं बुलाया इसको, कोविड को हमने नहीं बुलाया, रिसर्च ही बताएगी कि कहां से शुरू किया, क्या ये ह्यूमन जनरेटेड था या ये जूनोटिक है, एनिमल से आया है, ये रिसर्च लेबोरेटरी से आया है, ये तो अब आगे की रिसर्च बताएगी। लेकिन मैं ये कहूंगी कि एक ही हकीकत है हमारे सामने, और तो इस हकीकत से लड़ना है या जीतना है। हमको इस चॉइस अब हमारे पास है, हमने दुखी होना है या समझना है। मेरी व्यू में आपने कहा मैनेजिंग सेल्फ एंड वर्क ड्यूरिंग क्राइसिस, हम सबको इसको समझ के आगे चलना है। और इसकी समझ एक ही है कि ये ऐसी बीमारी है जो जब आप बुलाओ नहीं आएगी नहीं। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो ये आएगी, अगर आप सैनिटेशन में विश्वास नहीं करते तो ये आएगी, अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे, एक दूसरे को अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ये आएगी। लेकिन अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं मास्क से, जैसे मैं आपके सामने मास्क के लिए आई थी, अगर आप ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये हकीकत एक्सेप्टेंस है, क्योंकि ये बाय वेपर, बाय योर माउथ, बाय योर चीक दूसरे को इन्फेक्ट करती है। ये एक वायरस है जो मैं बाय ब्रेथ या बाय चीट, इवन माय आईज नीड टू बी प्रोटेक्टेड। So this is a reality of the show. Then it comes all through my hands because I keep touching my eyes, or I go into my mouth. This. And why is it social distancing? Because of this. So if we take this precaution, then this reality can be fought. क्योंकि वायरस घर करता है, वायरस जाने के लिए नहीं आता है, वायरस आपके अंदर आने के लिए आता है, वायरस आपके अंदर घुसता है, और वो घुसता है आंखों से, ये घुसता है माउथ से, और ये दोनों चीजों से। So breathing say, so if we breathe each other so closely, then it will enter. We need to accept it. तो ये वायरस जाने के लिए नहीं आता है, आपके अंदर घर में ग्रो करता है। इसलिए अगर हम इसको खुराक ना दें तो हम इसको डील कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन कहा था और उसके बाद वो एक नेशनल अपील्स आ रही थी कि 2 गज की जमीन रखो, 2 गज की डिस्टेंस रखो, और कहा गया था मास्क पहनो, स्वच्छता रखो। अगर सारे देशवासी अगर उस वक्त ये कहना मान लेते, आज वो हम लोग नुकसान नहीं होता। सिमिलरली आपने देखा दूसरी कंट्रीज में भी, जहां जहां ये मैसेज गया, जिस कंट्री ने इसका पालन किया वहां पर फेर्टिलिटी कम है, वहां केसेस कम है। और जिस कंट्री ने इसको सीरियसली नहीं लिया, या और आपको पता है एक कंट्री तो जान के हगिंग कर रही थी, वो हग कर रही थी, वो डांस कर रही थी टू बीट कोविड, दे से बीट, और सडनली लॉकडाउन हुआ और सबको घर वापस लौटना पड़ा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज मैनेजिंग सेल्फ एंड वर्क ड्यूरिंग क्राइसिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड ये क्राइसिस है क्या। ये क्राइसिस ये है कि जब तक इसको आप इनवाइट नहीं करो, ये जूते कभी ये ऐसा क्राइसिस है कि जहां अगर बाहर से जूते पहन के निकले हो तो जूते भी बाहर उतार दो। डोंट टेक द शूज इनसाइड द हाउस। मोमेंट यू एंटर, चेंज योर क्लोथ्स, हैव अ बाथ, डोंट टेक इट इनसाइड बिकॉज यू मे हैव योर एल्डर्स देयर। अब ये भी कहा गया है कि एल्डर्स को ये ज्यादा इफेक्ट करती है क्योंकि उनमें इम्यूनिटी में ग्रेजुअली लो होती है। चाइल्ड एंड एल्डर्स, और एल्डर जिसमें कोई ना कोई ऑलरेडी कोई ना कोई मोबिलिटी है, किसी को कोई ना कोई इश्यू है, तो उसको फिर इफेक्ट करती है बिकॉज अंदर इम्यूनिटी लड़ने के लिए वो कम है। सो आई वुड थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड इन द टुडेज क्राइसिस व्हाट इज दिस इशू। दिस इशू इज अ हेल्थ चैलेंज। ये हमें चैलेंज करने आया है हेल्थ से, और हमारे घर अपने घर बनाने आया है। अगर हम इसको ट्रांसमिट नहीं करें, क्योंकि दिस disease can stop with me if I don't pass it on to you. I don't pass it. That means वो मेरे घर आने अगर मैं pass on नहीं करूं, I can kill it. I can finish it by my own social distancing and treatment immunity. और treatment available, treatment अभी तक जिसका ज्यादा केस खराब नहीं हुआ, they've been treated. And so far, the 2 out of 1, 1 out of 2 have recovered. And even higher percentages as the treatment has been. But the pressure is very high on our white doctor warriors. So first of all, therefore, how do we deal with it? Ab aapko reh gaya, stay home, stay safe. How do you stay at home?
आपको तो आदत थी दफ्तर में जाने की, फ्रेंड्स को मिलने की, आपको आदत थी आउटडोर जाने की, आपको आदत थी वीकेंड ट्रिप लगाने की, आपको आदत थी जाके रोज बाहर खाना खाने की, आपको आदत थी रोज जिम जाने की, आपको आदत थी एंटरटेनमेंट के लिए मूवी में जाने के लिए, हमको शॉपिंग की आदत थी, सारी हमको खर्चा ज्यादा करने की आदत थी, हमको यूरोप में ट्रिप जाने की आदत थी, हमको बहुत बड़ी लंबी लंबी मीटिंग्स की आदत थी। ये सारी आदतें नीड अ चेंज, बिकॉज हमने वायरस को अंदर नहीं आने देना। हमने अब एयर कंडीशनिंग बंद दरवाजों में, जहां बहुत सारे लोग हैं, एक दूसरे की सांस की हवा नहीं लेनी जब तक ये चीज काबू में नहीं आती। और ये कब काबू में आएगी? I don't think we can say anything whether it will be end of June, July, August, September, दिवाली तक year, क्योंकि जब तक इसकी प्रिवेंशन नहीं आती, इसकी एंटीडोट नहीं आती, इसका इंजेक्शन नहीं आता, हम लोग नहीं बच सकते इससे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वापस भी आती है। आपने देखा है परसों एक कंट्री में जहां शुरू हुई थी, वहां फिर से बीजिंग में स्कूल बंद किए गए, and they have been able to told the children to go back. So ये नहीं है कि अब एक ट्रिक हो गया तो ये वापस आएगा। So हमको अंडरस्टैंड करना है ये रियलिटी कि हम किससे डील कर रहे हैं। इसलिए हम अपने मेथड्स ऑफ वर्किंग, हमारे मेथड्स ऑफ लाइफस्टाइल्स, और अब बिजनेस बंद है, उसके लिए पैसे नहीं अब आ रहे, मैं अपनी नौकरी का क्या करूं, मेरे जॉब्स का क्या होगा? वेल, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जिसकी जो सिचुएशन है उसको समझना पड़ेगा। रोने धोने से नहीं फायदा होना, अब तो समझना है कि मैं अब, इट्स कॉल्ड स्मॉल इज ब्यूटीफुल। आज मैं अखबार पढ़ रही थी, उसमें एक होटल इंडस्ट्री में जो उनके रिटायर्ड चीफ है, उन्होंने कहा कि अब ये बहुत बड़े बड़े होटल्स में लोग नहीं जाएंगे ज्यादा जब तक फॉर्मली होती। दे विल गो टू nursing homes, they'll go to small hotel. Small is going to become back as beautiful. Small is now preferred. Small जहां 10 कमरों का होटल है, या जहां 10 कमरों का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, पीपल विल प्रेफर दैट, क्योंकि वो सारी फैमिली या फ्रेंड्स जो बिल्कुल सारे हेल्दी है, वो एक ही जगह इकट्ठे होकर एंजॉय करेंगे। नाउ सी इट्स सिचुएशन टू बैक टू another way of living. पहले everything was going big. It was meeting that need at that time. जब वो टाइम वापस आएगा, it will become relevant again. But now we have to rework and make things smaller so that smaller can become more. So we have to rework the way we spent. Now let's rework the way we spent our time. How did we spend our time? Earlier ये पता भी नहीं चलता था कि दफ्तर में कितना टाइम बीत गया, और परेशान होते रहते थे, मेरे टाइम ही नहीं मिल रहा घर आने का। अब ये है कि टाइम ही नहीं मिल रहा दफ्तर जाने का, क्योंकि दफ्तर में कहा गया है कि ऑल्टरनेट डे आओ, या लॉकडाउन है तो दफ्तर में मत आओ, या दफ्तर में मैं जाऊंगा कोई कस्टमर नहीं है, दुकान में कोई आ नहीं रहा, या मेरा रेस्टोरेंट है तो कोई आ नहीं रहा। सो वी हैव टू चेंज, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी एज इट इज। अगर हम इस पे परेशान रहेंगे तो हम सॉल्यूशंस पे नहीं आएंगे। अगर हम समझ लेंगे कि मेरे पास चॉइस कोई नहीं है, कोविड आपके लिए, हमारे लिए सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं आया, ये सारी दुनिया को पड़ा है। ये पहली बारी है जो बीमारी एक ऐसी है जो सबको बराबर पे उसने डाल दिया है। इसके कारण है बहुत कुछ कारण, बड़े कारण है। हमारा रहन सहन कारण था, हमारा सोचना, हमारा खाना पीना, द काइंड ऑफ फूड वी वर ईटिंग, जो कि हमने सोचा भी नहीं था कितना महंगा पड़ेगा, पर पड़ा। सो वी हैव टू रीवर्क द वे वी थिंक, द वे वी लिव, द वे वी स्पेंट, द वे वी टॉक्ड, the way we dealt with even in our own families. Now is the time to spend more time with the family, spend more time to yourself, spend more time to reflect, spend more time doing yoga, which जो कि आपके हमारी सबके लिए एक spiritual खुराक है, वो तो है ही भारतीय संस्कृति, तो उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं निकलता था। अगर हम अपना टाइम ठीक से बताएं तो we will be able to recover from here. I've also seen some very interesting stories. उन्होंने कहा, मैंने कहा हाउ डिड यू स्पेंड योर लॉकडाउन टाइम? उन्होंने कहा मैंने बहुत फायदा किया। मैंने कहा क्या किया? पहले मैंने योगा बहुत किया, और मैंने फालतू का खाना नहीं खाया, क्योंकि बाहर का खाना फैट फूड होता था, फ्राइड फूड होता था, ओवर ईटिंग होती थी। मैंने 5 किलो वजन कम कर लिया। Many people are saying, some are saying we've gained weight because we could not go to the gym. Some are saying we've lost weight and we become fitter because I could meditate, I could do more yoga, I could do more reading, I could do more music, I could play with my children,
I could attend to my home, I could cook better, and I could also work from home and connect with the world overseas. See, there are two perspectives. आपको मैं कहानी सुनाती हूँ. एक व्यक्ति दो सेल्समैन अफ्रीका भेजे गए, दो सेल्समैन अफ्रीका भेजे गए और कहा कि जाओ जाके शूज सेलिंग करो. तो वो व्यक्ति गया उस कंट्री में, तो उसने कहा, उसने ईमेल भेजी अपने बॉस को, मुझे जल्दी वापस बुलाओ, यहाँ से जल्दी वापस बुलाओ. क्या हो गया? बोले इस कंट्री में तो कोई जूता ही नहीं पहनता, तो मैं जूते क्या बेचूं? मैं जूता बेचने आया था, यहाँ तो कोई कंट्री में जूता ही नहीं बेचता, प्लीज कॉल मी बैक. दूसरा सेल्समैन भी गया, उसने भी यही देखा, उसने देखा कि यहाँ कोई जूता नहीं पहनता. उसने ईमेल भेजा, मुझे ट्रक लोड्स ऑफ जूते भेजो, यहाँ कोई जूता नहीं पहनता, मैं खूब जूतों को बेच सकता हूँ यहाँ. I can sell. So it's an attitude. One salesman says, there is no place to sell. The other salesman saying, it's all place to sell. It's an attitude. जितना जैसे हम सोचेंगे, कोविड भी एक एटीट्यूड है. ये हम इससे दुखी भी हो सकते हैं, हम इससे परेशान भी हो सकते हैं, और इसको एक रिन्यूअल का टाइम भी सोच सकते हैं कि मैं इसको डील कैसे करूं. This would be my view. How do you manage yourself during this crisis? It's an attitude. It's an attitude. What can I do with what I have, rather than what I can't do because I don't have that. If we do have this attitude, what can I do with what I have? Then you look at your assets, count your blessings. जिंदा हो, बहुत अच्छी बात है. सबसे बड़ी बात, आज आप तंदुरुस्त हो, जीवन है, हेल्दी हो. अगर आप हेल्दी हो, जीवन है, तो आपके पास अभी सब कुछ है, क्योंकि हाथ बार चलाओगे, सोच लगाओगे, कुछ ना कुछ करोगे. हाँ, बड़े अमीर नहीं बन सकते अभी, बहुत सारे लोग एम्प्लॉय नहीं कर सकते. जीवन है ना, कितना चाहिए अपने लिए, उतना आप कमा लोगे, आप उतना सोच लोगे. तो ये नई सोच ऑफ रहने की, सोचने की, करने की. So I think that it's a whole revolution. It's called the whole transactional value system. अपने सारे वैल्यू सिस्टम को देखो, आपका बिहेवियर पहले कैसे था, अब कैसे है, ईटिंग हैबिट्स पहले कैसे थी, उसमें क्या करेक्शन हो सकती है, इंप्रूवमेंट हो सकती है. So it's a time to reflect and time to build from where you were, where you've been left. COVID has left you. If you are sensible, then you will say, you will be able to move forward and prepare for the times ahead till this challenge lasts, and you will only be moving forward. But if you're worried, then you will only get into depressions, you'll only get into negativity, and you'll only suffer pain, and then you'll be looking for help. कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी help करो. तो help मिले या नहीं मिले, God knows. But let's not get into negativity. We don't have a choice. हमने नहीं इस बीमारी को बुलाया, हमारी गलती से नहीं आया, लेकिन जो है सो उसको कबूल करके आगे चले. This would be my opening statement. Thank you. Thank you so much, ma'am. So inspiring, and you can see in the chat also that so many people are appreciating it a lot. Yet, we received some questions in advance, and people are little, scared and more concerned about the financial health also, financial and mental health, other than the physical. They says if like we will survive, and if we do not have money, अगर हमारे पास पैसा नहीं है आगे के लिए, तो कैसे करेंगे? Because nowadays private companies में like companies or employers are sacking people, or they do not have jobs. अगर ये कोविड सिचुएशन भी खत्म होता है तो उनके पास आगे काम करने को कुछ नहीं है, पैसा कमाने को नहीं है, तो वो कहाँ से अपनी लाइफ को आगे स्पेंड करेंगे? That is one biggest challenge that people are forcing now. So what would you suggest in this situation? हर एक के पास अपनी भी स्किल्स हैं, अपने अपने रिसोर्सेज है, अपनी काबिलियत है, अपना सपोर्ट सिस्टम है. They'll have to reevaluate. What is it that they may have to begin again, begin afresh? What are the sources they can pick from the government policies, wherever they are available? They are part of some associations and groups, take consultancy and counseling help. I think everybody will be uniquely different. So जो भी अपने हाथ में रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास काबिलियत है, कैपेसिटी है, सपोर्ट सिस्टम है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, that way you'll have to reassess. There's no one answer. The only answer is accept reality, focus on solutions, rather than what I don't have, focus on what I have. I have life. Life है तो कहते हैं ना, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, जान है तो जहान बनाना है, जिससे भी शुरू करें. So जो भी स्किल है, चाहे even if you have to start afresh
and even if you start from the beginning, it's you have no choice. ये हर एक की स्थिति अलग अलग है. आपने देखा है माइग्रेंट लेबर अपना काम छोड़ के शहरों में वापस गया ना, वापस खेती में वापस अपनी जमीन पर वापस गया ना, अपने गांव में वापस गया. अब वहां जाके उसको मनरेगा मिले या कहाँ अपनी जमीन खोदे या अपनी सब्जी उगाए या अपनी वहां कर लेबर करे, he is gone back because he went for his life. He left his livelihood and he went for his life. कि उसने कहा पहले मेरा परिवार और मेरा जीवन, बाद में मेरा लाइवलीहुड मैं बाद में देखूंगा. Look at him, how daringly he went back. उसने ये नहीं परवाह की कि मैं यहाँ रहूं तो मेरा कहीं रुके कहीं नहीं रुके, लेकिन उसके लिए जान है तो जहान है. अब अपना जहान बनाएगा. सरकार की तरफ से मनरेगा की स्कीम्स ताकि वो इन्वॉल्व कर सके, एग्रीकल्चर स्कीम्स, बहुत सारी सब्सिडीज, लोन्स. अब उसको समझ होनी पड़ेगी कि मेरे पास यहाँ पर मैं कौन कौन से साधन यूज कर सकूं. अगर वो जाने ही नहीं, पहचाने नहीं, उसको कोई बताए भी नहीं और वो समझे भी नहीं, न्यूज भी नहीं पढ़े, समझे नहीं, तो वो क्या करेगा. तो इट्स आई एम टॉकिंग ऑफ द मिनिमम माइग्रेंट लेबर. वी आर ऑल एजुकेटेड क्लास. We need to read and see the opportunities which are opening up, new opportunities. We need to work together. ये टाइम में एक और चीज बात नहीं है, कंपटीशन के लिए टाइम नहीं है. ये कोलैबोरेशन का टाइम है. ये compete करने का नहीं है, वो ले गया आगे, वो ले गया आगे. अपना अपना सोचो, आप क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेटिवली क्या कर सकते हैं, वो करो. Absolutely, absolutely right, ma'am. And जैसा आप अपनी लाइफ में भी करते आए हैं कि you have always collaborate, with people. Even in Tihar jail, you made the community learning wherein जो पढ़े लिखे थे वो कम पढ़ों को educate करते थे. So this is an live example. But एक डॉक्टर धनलक्ष्मी बलागा हैं जो NGO चलाती हैं. उनका क्वेश्चन है कि today we are watching people in hunger. We want to help them. Even we are facing financial crunches. तो कि हमें हेल्प भी करनी है और हम खुद को भी सरवाइव करना है. तो इस सिचुएशन में अभी तक उनको जैसे स्पॉन्सर्स मिल जाते थे, बट इन नाउ दिस सिचुएशन पीपल आर स्ट्रगलिंग टू स्टैंड देमसेल्व्स. तो कहाँ से ये लोग पैसा अर्न कर सकें, जो एनजीओज हैं किस तरीके से वो अपना काम चलाएं जिससे दूसरों को वो हेल्प कर सकें, जो वो अभी तक करते आए हैं हमेशा. मेरी 2 एनजीओज हैं और मेरी दोनों एनजीओ सारी ऑनलाइन हो गई. They've all gone online. उन्होंने कोई बच्चा नहीं खोया, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया. They were in education, they were in counseling, they were in training. They're all online. They're online. और यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये कि मेरी संस्थाएं अब जो दिल्ली सेंटर्ड थी या यूपी ये यूपी और हरियाणा सेंटर्ड थी, आज वो ऑल इंडिया बन गई, क्योंकि ऑनलाइन से अब यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से बच्चे जुड़ गए ऑनलाइन सीखने के लिए. उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, तुरंत इन्वॉल्व करके अपने पास जो साधन थे उससे शुरू कर दिया. अब धीरे धीरे रिसोर्सेस आएंगे, सबने अपना अपना बेल्ट को टाइट किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी. तो आज मेरी संस्थाएं जो लोकल थी अब वो ग्लोकल बन गई. ये मेरा कंपैरिजन नहीं मैं कर रही, हर एक की स्थिति अलग अलग होती है, हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है. ये सभी को जेनरिक नहीं, मैं सिर्फ कर रही हिम्मत की बात कर रही हूँ. सिर्फ हिम्मत ना हारो, अपने आप दिमाग से सोचो कि जहां पर मैं हूं मैं क्या कर सकती हूँ, वो करो. क्योंकि मैं बिना स्थिति को समझे हुए मैं नहीं कह सकती, बिकॉज आई हैव नॉट सीन द पेशेंट, हाउ कैन आई गिव एनी मेडिसिन. बट ऑल आई कैन टेल यू इज हाउ वी हैव डन. We were also exactly in this, but not for a day. They have not laid off anybody. They've not laid off anybody. Everybody's got involved and started to deliver, and they went on to online education. Now more and more online companies who are into IT and into this, I'm sure because the kind of following they have, they will probably join them. So ये बात नहीं है कि अब दूसरे रास्ते, अगर एक दरवाजा भगवान बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है. तो आपको खुले हुए दरवाजे को भी देखना है या खुद खोलना है, और अगर नॉक है तो नॉक को सुनना है. So you have to be enterprising yourself. हिम्मत नहीं हारनी. और उन्होंने बहुत सारी ऑनलाइन कलेक्शन करी और किसी को भी भूखे नहीं रहने दिया. घर तक गरीब बच्चों की जो एजुकेशन थी उनके घरों में अनाज आज भी पहुंच रहा है. उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. सो हिम्मत मत हारो, अपने आप सोचो कि हम क्या कर सकते हैं. तो जो भी छोटा कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं. कंपीट मत, ओ मैं पहले बहुत बड़ा करती थी अब मेरा थोड़ा सा रह गया. शुक्र करो जीवित हो थोड़ा करने के लिए भी.
Actually, right, yeah, very true, ma'am. And मैं सभी को बताना चाहूंगी यहाँ पे मैम का बर्थडे 9th जून को था और उस दिन मैम ने बिना गिफ्ट लिए सबको एक रिटर्न गिफ्ट पहले ही दिया है. And she has come up with online learning by the name of demonstrative learning. And I have seen that, ma'am. And आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए प्लीज सभी को, जिससे सभी को फायदा मिले और डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव है, how it is going to help all of us. Yes, demonstrative learning is just about 5 days old. ये एक वेबसाइट हमने क्रिएट की है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, डेवलप हो रही है, अभी हमारा सिर्फ वर्जन 1 है, सोली वर्जन 1. सो गलतियां मत ढूंढना उसमें, लेकिन अभी वो लॉन्च इसलिए की गई क्योंकि वो 9 जून को मेरी फाउंडेशंस मुझे वर्चुअल गिफ्ट देना चाहती थी, तो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग का दिया. डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग में सारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग है. मेरी दोनों एनजीओ की जो उन्होंने गुड प्रैक्टिसेस फॉलो की हैं पिछले 30 साल से, वो डाल रहे हैं. सो इट्स ऑल डेमोन्स्ट्रेट. एक सेक्शन है हाइव सेक्शन में स्टोरी रीडिंग है, आप स्टोरी, बच्चे स्टोरी सुन सकते हैं. मेरी इंस्पिरेशनल मैसेजेस इन द मॉर्निंग, आप वो इंस्पायर हो सकते हैं. फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो एनजीओ की है वो हम डाल रहे हैं धीरे धीरे, ताकि कोई एनजीओ है तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग सीख ले. फिर मेरा जो प्रैक्टिकल वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैंने पिछले 30-35 साल की पुलिसिंग और अब 4 साल एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर, मैंने एक्सपीरियंस जो इस काम में गेन किया, धीरे धीरे हम वो वहां डाल रहे हैं ताकि लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ले ले. जो बुक्स भी है वहां पर. सो डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग इज ऑल बाय लर्निंग बाय प्रैक्टिकल. उसमें थ्योरी कोई नहीं है, उसमें ऑल प्रैक्टिकल लर्निंग है. चाहे वो एनजीओ की लर्निंग है, चाहे वो मेरी करियर का एक्सपीरियंस है, या आप स्टोरी सुन लीजिए, या इंस्पिरेशन के लिए कोटेशन सुन लीजिए. सो इट्स लिसनिंग, इट्स सीइंग, इट्स लिसनिंग एंड फीलिंग. हाउ डू यू फील अबाउट इट एंड गेट इंस्पायर्ड. सो ये एक फर्स्ट वर्जन है, उसको हम डेवलप करते जा रहे हैं. एक और सेक्शन धीरे और डाल रहे हैं, दूर पास, जहां हमारे बच्चे, और ये ज्यादा मैं कोशिश हमारी कर रहे हैं कि हमारी हिंदी रीडरशिप के लिए ज्यादा आए, ताकि बच्चे वो कैटेगरी ले हम लोग जो कि इससे चीजों के वंचित रह जाते हैं. तो इसलिए लॉट ऑफ हिंदी कंटेंट इज आल्सो गोइंग. इंग्लिश के साथ साथ हिंदी कंटेंट भी हम डाल रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे कोई स्टोरी लिख रहे हैं. एक आसपास भी कॉलम है, एक कॉलम हम लोग डाल रहे हैं शॉर्टली. आसपास, दूर पास मीन्स दूर बच्चे ने एक पोइट्री लिखी, दूर बच्चे ने एक ड्राइंग की, हम अपने साइट पे उसको डालें, शेयरिंग करें विद द चिल्ड्रन. फिर हमारे पास कॉलम है आस्क अस का मतलब है आस्क मी, मेरी पुलिसिंग के बारे में, प्रशासन के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स के बारे में. तो हम आपको फिर लिंक कर देंगे कि करेक्ट जगह कहाँ है जहां आप जाकर गाइडेंस ले लें. मान लो पुलिस की है तो हम करेक्ट पुलिस स्टेशन, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ इन्वॉल्व करेंगे. मान लो फाइनेंस है तो हम आपको फाइनेंस से लिंक कर देंगे. एग्रीकल्चर है तो हम आपको एग्रीकल्चर से लिंक करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किधर है ये. सो यू, रादर देन यू wasting time, we will help you to connect with the right source to get information. So it's, as I told you, it's a version 1. हम लोग यही, it's a site where you can demonstrate, you can do fast forward. The key word is fast forward learning. अपनी learning को fast forward करो, time मत lose करो. So that is that's a main site demonstrative learning about. इसकी Twitter handle भी है, so you can connect with demonstrative learning. It's demonstrative LE. So this is what we've created, ताकि हम लोग मिलके एक दूसरे को सिखाएं. जो मैंने सीखा वो मैं पब्लिक करूं, ताकि पब्लिक का बेनिफिट हो. वेट मत करो, सीखो और आगे सिखाओ. Learn and teach others. Right, absolutely. और जैसा आप हमेशा इंसिस्ट करते रहे हैं, एम्फोसिस करते रहे हैं over 4S, शिक्षा, संस्कार, स्किल्स और स्वास्थ्य. And I'm sure ये सभी, yeah, it's शिक्षा, संस्कार और skills. शिक्षा, संस्कार और skills. You're right. Yeah. 3S, शिक्षा, संस्कार और skills. और आपने एक और ऐड किया था, स्वास्थ्य. अंशुल, अब क्वेश्चंस ले लो, 5:45 बज गए, मुझे 6 बजे तक फारिग होना है. Yeah, next question that I'll take is from Professor Deepa Manoj. She want to ask, do you use any specific model or you use your past experiences to assess potential risks and responses to it? Responses to what? To the risk that has come to you. Please.
to anything what come to me? Any risk that comes to you, so you use any specific model for it, or you use your past experiences to assess what the risk that has come to you and response, or maybe your retaliation, your reflection towards it. The model is only one thing, कि give up नहीं करना. There's only one model to take on any risk, कि give up नहीं करना और अपनी समझ इस्तेमाल करनी कि इस सिचुएशन में मुझे इसको कैसे हैंडल करना है. तो सारी पुरानी आपका सारा कैरेक्टर उसमें जुड़ जाता है कि आप हैं कौन. अगर आप बुज़दिल हैं तो भाग जाएंगे, अगर आप बहादुर हैं तो डील करेंगे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप किसी को जोड़ेंगे या खुद करेंगे. आई थिंक एवरी सिचुएशन, you don't wait for a theory and a model. Every situation is situational response, and who you are is the challenge of the day. अगर आप हिम्मत वाले हैं, आपके पास बहादुरी है, एक्सपीरियंस है, एनर्जी है, तो उसके आपका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा. अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास और हेल्प नहीं है, तो आप कुछ और मांगेंगे. आई थिंक इट हैज टू बी सिचुएशनल. व्हाट इज बिफोर यू? Okay. But the spirit is, your spirit is, what do you want to do? Do you want to succeed, or do you want to give up, or do you want to adapt, or do you want to postpone? It's a situation tells you. Right. It's a patient. Every patient is unique to the doctor. तो डॉक्टर जो है वो हर पेशेंट के इसलिए सारे टेस्ट करता है, समझता है, फिर से now this is your medicine. The medicine may be the same, crocin may be the same, but after he has understood the patient. Absolutely right, ma'am. So every situation is why is like a patient before a doctor. But doctor's learning and doctor's experience comes to the fore. But the objective is, I have to cure the patient. I don't transfer the patient. I guide the patient. And somebody may need no medicine, may need only counseling. So it is situational. But it comes, all your life's experience at that time comes to the fore. Exactly, ma'am. So we, call it situational leadership, and this is what you are talking about. Ma'am, one question is there from Mr. S.C. Kalia, and he want to ask, do you think human resources is losing its human touch because of the new culture of work from home? Work from home loses what? Well, you don't have a choice. अरे then जब आप work from outside करते थे, तब आपसे प्रश्न करते थे, have you lost touch at home? So अभी ये situation है. So build your foundation, build your roots with your family. अभी यही है तो यही है. एक जब खुलेगा तो बैलेंस करना. तब पहले जिंदगी इम्बैलेंस हो चुकी थी, अब एक तरफ और बैलेंस शिफ्ट हो गया है. अब दोनों का बैलेंस करो. जब खुल जाएगा तो बैलेंस करो. फैमिली आपकी सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली आपकी स्ट्रेंथ है, बच्चे आपके लिए एक जॉय, एक बंडल्स ऑफ जॉय है, आपका लाइफ पार्टनर आपका सपोर्ट सिस्टम है, पेरेंट्स आपके लिए एक खुशी का कारण है, कर्तव्य, एक ब्लेसिंग है घर में. सो जब को हर एक चीज को ब्लेसिंग समझोगे तो घर में खुशी आएगी. अब समय मिल रहा है, पहले यही कहते थे मुझे समय नहीं मिल रहा अपने बच्चों के लिए, मुझे समय नहीं मिल रहा अपने माँ बाप के लिए, मुझे समय नहीं मिल रहा अपने घर के लिए. तो अब समय ही समय है, उसका फायदा उठाओ ना. Exactly. Okay, so thank you for this, ma'am. And another question is from this Isaac Pattu Raja, and he want to ask that as an IPS officer, you must have dedication and hard work. So which of these two characteristics would help managing self and work? And plus, ethics and integrity are two essential attributes for human being should possess. So what do you think, like which of these should be foremost important to deal in crisis? Dedication, Crisis. hard, Crisis, that's a crisis. It all depends on what kind of crisis. It all depends on what kind of crisis. अभी कोविड का क्राइसिस है. It depends on what kind of crisis. But it's a person in you. आप क्या प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, कि प्रॉब्लम क्रिएटर है या प्रॉब्लम लीवर है. सो क्राइसिस टू क्राइसिस वेरी करेगा. कोई एनवायरमेंटल क्राइसिस भी हो सकता है, पर्सनल ट्रेजेडी भी हो सकती है, ये जैसे अब का आया ये भी हो सकता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड, बट it's the person who's dealing with the situation.
वो उसको कैसे सब इमोशनली, फिजिकली, कैसे मेंटली, सो ये जब आप क्राइसिस थे, इसमें माइंड बॉडी सोल सब कुछ आता है. इट्स spiritual, your spiritual capability, your emotional balance, and your physical energy all go into dealing with the crisis. It depends on what crisis you're dealing with. So ma'am, next question is from Mr. Harish Kumar, Dr. Harish Kumar. He want to ask how the motivation to work can be sustained during the situation of pandemic. Kindly give some tips. ये तो डेली होमवर्क है, इसमें छुट्टी, मोटिवेशन में कोई छुट्टी नहीं होती. Okay. It's a mental preparation which you need to feed yourself on a regular basis. It's a habit of positivity, and positivity does not have a holiday. It's like crime. Oh, मैंने 365 days ना 364 days मैंने कोई crime नहीं किया, एक दिन तो मैंने ये crime किया, मैडम फिर क्या हो गया? There is no exception. Certain things, certain good things of life, doing the right way has no holiday. You can't say I did the right things for all these days and I can do one wrong thing, when then you pay a price for it. Price for it depends on how culpable you are. So certain things are good habits. Certain things are good habits which are to be part of your life. Ma'am, there is a motivation. Motivation, personal inspiration is also a habit where you get up and you look forward to the day ahead. You have ideas for the day. You have actions for the day. You have responsibilities for the day. Do that. Yeah, sure. Ma'am, there was a question from Mr. Pradeep Pardesi, and he want to know that how you are managing in Puducherry during this pandemic, and how it is, you are securing your people there at your place. What are the steps that you can take? Yeah. We have a whole administration here. I've very capable of experienced administrators belonging from the Indian Administrative Service, Indian Police Service, Puducherry Police Service, Puducherry administration. Then I have all these public officials. I've also got these elected representatives. And then we have a population of about 16 lakh people here. And it's large regions, but we have the laws, we have the resources, but we have shortages also. We are constantly assessing what we need to do. We have policies where we're also being guided by the Government of India on a daily basis. Video conferences are being taken by the Honorable Prime Minister, the Home Minister, the Cabinet Secretary, the Home Secretary. They are regularly grooming the Chief Secretary and the Secretaries of Puducherry. The President of India has held video conferencing with us. We are on a constant interaction with Government of India. Then we daily hold our own 6:30 p.m. of video conferencing where all secretaries, we all assemble together, not physically, virtually every day to review what happened. Chief Secretary holds his own daily review at 3 p.m. with the secretaries. The collectors do their own reviews so that we are all into action. Some of them are working in the field. Some of them are getting things done virtually by audio conferencing or video conferencing. We have policies, we have rules, so everything is being assessed. For instance, अगर आज पता चला कि यहाँ social distancing एक market में ठीक नहीं हुई, तो we analyze ये ठीक नहीं हुई, तो इसलिए क्योंकि fish market में बहुत ज़्यादा, so अभी वो plan बना fish market को हम separate कैसे करें, इसको relocate कैसे करें, so उसमें relocation में municipality भी involved है, police भी involved है, health वाले भी involved हैं, एसोसिएशन वाले भी इन्वॉल्व है, उनके साथ कलेक्टर मीटिंग्स करता है, उनको समझाता है, फिर मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों को बताते हैं कि फिश अब खरीदनी है तो वहां ऑक्शन हॉल वहां पर है. सो दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन जहां वी कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर. हर एक के पास अपनी अपनी जिम्मेवारी है. कलेक्टर की अपनी जिम्मेवारी है कि सबको इकट्ठा करके समझाना. म्युनिसिपैलिटी का काम है देखना कि दुकानें जब खुली हैं तो वहां भीड़ नहीं हो, वो लाइन लगाएं. पुलिस का काम है हर एक की लाइन लगवाओ. म्युनिसिपैलिटी और पुलिस का काम है जो ये मास्क नहीं पहनता उसका चालान करे. सो जी ताकि वो कोई इन्फोर्स करता है, कोई प्रिवेंट करता है, कोई एजुकेट करता है, कोई कोऑर्डिनेट करता है, कोई रीप्लान करता है, कोई शिफ्टिंग करता है. सो दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन. ये मेरा रोज का काम है, तो इसको काम को कोऑर्डिनेट करना. Right.
So actually, so many questions are coming, and I'm sorry to all the attendees. We won't be able to take up all the questions, but I'll take up selective questions here. One, Mr. Chandrasekhar, he want to ask about emotions, how to manage emotions, and as we all know these days, like recently yesterday, Sushant Singh Rajput, he committed suicide, which is very vulnerable mental health that we all, or maybe some of the people are undergoing. So how to manage that, because ultimately he is the one who was having everything, but still he committed suicide. So what could be the reason? Is it isolation, or is it something that we are not sharing is the problem? So can you please throw some light on how to manage your mental health or mental well-being? Acha, so we will make this the last question because it's going to be 6 o'clock. This is the last question, but I think it's a very useful question. मैं इसका जो मेरी समझ है मैं आपको बता सकती हूँ मैं कैसे डील करती हूँ. So क्योंकि मैं कोई प्रीचर नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, लेकिन मैं भी अपनी लाइफ कैसे जीती हूँ क्योंकि जिंदगी में हर तरीके की सिचुएशंस आती हैं, तो मैं सिर्फ आपको वो शेयर कर सकती हूँ जो मैं करती हूँ. एंड व्हाट वर्क्स फॉर मी मे वर्क फॉर यू. मेरी फीलिंग ये है कि, और ये मेरी ट्रेनिंग है, ये मेरी सीख है कि मैंने भी अपने पुलिसिंग करियर में, प्रशासन में अपने चैलेंजेस को कैसे डील किया, ये मैंने ट्रेनिंग ली है. एक तो है कि आई थिंक वी शुड गो फॉर मेडिटेशन कोर्सेज. हमको योगा और मेडिटेशन कोर्सेज के लिए एनरोल करना चाहिए, हमको सीखना चाहिए, हमको वहां ध्यान लगाने के प्रोग्राम्स करने चाहिए. ये कोर्स जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है श्री श्री रविशंकर जी का, जैसे ईशा फाउंडेशन है इनर इंजीनियरिंग कोर्स का सदगुरु जी का, जैसे ब्रह्म कुमारी के कोर्सेज है, हमको करने चाहिए. जैसे कि विपश्यना है गोयंका जी का, वी शुड डू दिस कोर्सेज. हमको ऐसे कोर्सेज में एनरोल होना चाहिए. अभी आप फिजिकली तो एनरोल नहीं हो सकते, ऑनलाइन कोर्स जहां जहां आपको अच्छा मेडिटेशन कोर्स मिलता है आपको करना चाहिए. जैसे आप कोर्स में एनरोल करेंगे आपको मानसिक स्थिरता, अपने आप को मेंटल मैनेजमेंट आ जाएगी क्योंकि आपको सिखाएंगे और उसमें आपको ध्यान लगाना है, अपने आप को चुप रहना है. साइलेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो मैंने विपश्यना कोर्स भी किया, मैंने इनर इंजीनियरिंग कोर्स भी किया, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स भी किया, मैंने ओशो की किताबें भी बहुत पढ़ी हैं, मैंने ऑटोबायोग्राफी योगी भी पढ़ी है, मैंने स्वामी रामा की लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स भी पढ़ी है. मैंने बहुत सीखा है, बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है. मैं रेगुलरली सुनती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, समझाती रहती हूँ, अपने आप को ग्रो करती रहती हूँ. लेकिन इन सभी कोर्सेज का सार एक है जो मैं आपको शेयर करती हूँ. सार ये है कि आप अपने आप को देखो. मतलब आप कहोगे क्या देखो? अपनी सोच को भी देख सकते हो. हाँ, आप अपनी सोच को देख सकते हो, आप अपनी सोच को महसूस कर सकते हो. मेरे मन में इस वक्त उतावला आ रहा है, मेरे मन में उतावला आ रहा है, मेरे मन में इस वक्त बहुत खुशी आ रही है, बहुत अच्छी बात. तो इसका मतलब आप और सोच दो जगह अलग अलग है. यू हैव टू बी अ विटनेस टू योर ओन थिंकिंग, यू हैव टू बी विटनेस टू योर ओन डिप्रेशन, यू हैव टू बी अ विटनेस टू योर ओन व्हाट्स हैपनिंग. मेरे इस वक्त बड़ा अंदर दुख आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूं. अरे पता चल गया ना परेशान हूं, दैट मीन्स तुमको पता चल गया. जिस वक्त आप कहते हैं मैं परेशान हूं, इसका मतलब आपको समझ आ गई मैं परेशान हूं. लेकिन फिर आपकी बेवकूफी है कि मैं परेशान ही रहूंगा. अरे आपको परेशान हो तो आप अपनी परेशानी को डील कर लो. कैसे? कुछ और ढूंढ करके, अपनी सोच को बदल के. सो आपके पास हिम्मत रहनी चाहिए कि मैं पता चल गया है कि मैं परेशान हूं, मुझे पता चल गया मैं दुखी हूं, मुझे परेशान है कि ये मुझे व्यक्ति दुखी कर रहा है, तो मैं उसकी बात में दुख से दुख की करूं. सो मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ जो मैं करती हूँ. आई एम अ वेरी सिंपल ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल स्पीकर, आई एम ओनली गिविंग यू माय प्रैक्टिकल वे. जो मैंने विपश्यना में, आर्ट ऑफ लिविंग में, इनर इंजीनियरिंग में, ब्रह्म कुमारी जी से और भी और सारे प्रोग्राम मैंने बहुत सारे सुने हैं, सार उसमें नजर आता है. ये सभी आपको ये बताते हैं कि आप अपने आप को जानो, अपने आप को देखो, अपने आप को समझो, अपने आप को सुनो, अपने आप को समझो, अपने आप का डील करो. और उसके बाद आपको जब पता चल गया कि आपके साथ क्या हो रहा है, तब आपको कुछ और करो.
अपनी सोच बदलो, क्योंकि माइंड में दो सोच एक जैसे टाइम पे नहीं रहती है, वो एक आती है और उसको आप धक्का मार के दूसरा कर सकते हो। गाना गाओ, वॉक करो, कुदरत में चले जाओ, कुकिंग कर अच्छा लगता है करो, पेंटिंग करो, गाना गाओ, सत्संग करो, म्यूजिक सुनो, कुछ ना कुछ और डाइवर्ट करो, सेवा करो। सेवा भाव बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अब आप फिजिकली ज्यादा नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, दूसरे का भला करो, दूसरे का सोचो, कुछ अच्छा पढ़ो, कोई ना कुछ चीज जो योग करो, ध्यान लगाओ, बैठ जाओ, ध्यान लगाओ। अगर किसी का कोई काम आ सकते हो, घर में काम आओ, बच्चे को पढ़ाओ, लेकिन इधर उधर ऊंचा नीचा बोलना गलत है। दैट मीन्स आपके आप काबू में नहीं है, अपने आप को काबू करो। डिप्रेशन जो है तभी आते हैं जब आप हार के सामने लेट जाते हैं। दैट मीन्स आपने उसको बढ़ने दिया, बढ़ने दिया, बढ़ने दिया, बढ़ने दिया, बढ़ने दिया, अब वो हावी हो गया पर। सो मानस ये विचार ऐसा है, विचार है आपके अधीन, ना कि आप विचार के अधीन हो जाओ। आप विचार को अपने हाथ में रखो कि मेरे, समझ लो कि मेरे सामने ये विचार आया है, ये ठीक नहीं है, मैं इसको गाली निकालूं। रिएक्शन जो है वो आपके हाथ में है, एक्शन जो है, आप रिएक्शन ना करो, एक्शन करो। जब आपका मन कुछ कर रहा है, एक्ट करो, ठंडा सांस लो, गिनती करो, पानी पियो, गाना गाओ, डाइवर्ट करो, लेकिन रिएक्ट मत करो, क्योंकि रिएक्शन जो है वो तुरंत आपको नुकसान पहुंचाता है, या बाद में भी मान लो गलत शब्द बोल दिया, तुरंत आपको गाली का जवाब, गाली भी आ सकता है, या बाद में भी आ सकता है, क्योंकि आपने तो बाहर है, व्यक्ति दूर है, वो बाद में आपको नुकसान पहुंच जाएगा, क्योंकि आपने वो जो कहते हैं ना, एक तीर है, शब्द एक तीर है, जो एक बार निकाला तो चलाया, वो वापस नहीं आ सकता। सो कैसे तीर मार रहे हो, किसको मार रहे हो? अपने आप को तीर मार रहे हो, तो क्योंकि वापस आपको आएगा। सो आई वुड से बड़े साधारण तरीके से, क्योंकि आपने डिप्रेशन की बात की है, डिप्रेशन एक दिन में नहीं आता है, डिप्रेशन बिल्ड करता रहता है, आप उसके अधीन हो जाते हो, आप गुलाम हो जाते हो, अपनी सोच के गुलाम। अरे सोच तो आपको, आपने सोचना है सोच, और आप ऐसा सोचते हो जो आपको गुलाम बना देता है। सो आई थिंक यू हैव टू लर्न, गो फॉर दीज कोर्सेज, रीड दीज कोर्सेज। और आजकल तो इंटरनेट पे इतने प्रवचन अच्छे अच्छे, आप इंटरनेट पे प्रवचन लगाओ, इंटरनेट पे मंत्र लगाओ, इंटरनेट पे भजन लगाओ, इंटरनेट पे अच्छी अच्छी किताब सुनो, ऑडियो बुक्स भी है। आज इंटरनेट का बड़ा फायदा है, और अगर आप उसका समय का सदुपयोग करोगे तो आप समझदार बन जाओगे घर बैठे बैठे, क्योंकि आपको खुराक मिलने लग जाएगी, जो कि आपके पास समय था ही नहीं। अब आपके पास समय ही समय है ऐसी चीजों को सुनने का, समझने का, एक्सपीरियंस करने का, प्रैक्टिस करने का, और उनको अपनाने का। राइट मैम। एक तो आप जो बोलते हैं मैम इसमें कि यू शुड बी द गेटकीपर ऑफ योर थॉट्स, so very well you have explained it. 6 o'clock. Yes, it's 6 o'clock. I've got to go now. No ma'am, 2 minutes. मैं बोल रही हूँ, आप जो बोलते हैं कि you should be gatekeeper of your thoughts, and that's what you have explained it very nicely. And ma'am, two things, only last two things here. See, some people were asking me how they can get connected or they can join your NGOs. That is one. And you can go to Navjyoti. My sites are navjyoti.org, indiavisionfoundation.org. Go to, if you feed Navjyoti, they are also on Twitter handle, but if you feed Navjyoti India Foundation, you can feed India Vision Foundation, you'll get to these sites. Okay, so ma'am, one last question before you give message collectively. That what was the most challenging time in your life, though we know that it was all throughout sail with, you know, you have always sailed through the challenges. तो ऐसा कौन सा टाइम था जो आपको सबसे मुश्किल लगा या रहा, और जो आपने आराम से उसको निकाला भी with your abilities and your skills? उसके लिए तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा. For that you go, Kindle में book available है. You can go on Kindle. अगर आपके पास किसी के पास Kindle है, you read I Dare. और Amazon में भी you can pick up this book I Dare. ये हिम्मत है, हिंदी में भी हिम्मत है, अंग्रेजी में I Dare है. So ये books available है, और demonstrative learning में भी books available है. You can go to the pub. You see, you have to read those books for that. That is why I'm saying this is a time to read inspirational books. Right, ma'am. That is why demonstrative learning. हाँ मैम, एक क्वेश्चन तो मेरा भी, ऐसी कोई भी चीज इस दुनिया में जिससे आपको डर लगा हो? जिसका क्या लगा हो? डर लगा हो आपको?
डर लगाओ। कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी, जैसे कि लोग बोलते हैं मेरी ये फोबिया है या मेरे को इससे डर लगता है, तो बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन यू एज एन इंस्पिरेशन एंड समबडी हु इज स्ट्रॉन्गर देन माउंटेन्स एंड द आयरन आल्सो, एनीथिंग दैट हैज मेड यू स्कैर्ड। उसको आप डर कह दो या रियलिटी कह दो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज मुश्किल होती है वेयर यू फियर दैट यू मे लूज योर लव्ड वन। उससे डर भी लगता है, घबराहट भी होती है, पता है कि कोई परमानेंट नहीं है, एक दिन चले जाएंगे। मुझे बहुत घबराहट होती थी, मुझे मालूम था मेरे माँ बाप एक दिन चले जाएंगे, और वो हुआ। वो डर भी था, घबराहट भी थी, लेकिन हकीकत भी थी। और ऐसी चीजों से आपको डर भी रहता है कि किस दिन चले जाएंगे, कब चले जाएंगे, क्योंकि आप उनसे, आप सब कुछ आपके लिए वो परिवार होता है। लेकिन ये हकीकत है, तो आप हकीकत को कबूल करते हो, उससे हकीकत के साथ जीते हो। Right, ma'am. Thank you. And Okay, bye bye. bye, ma'am. Before that, Mr. Natraj, the president, if he is there. He is not able to join. Yeah. He's trying. Yeah. Daniel, sir. Thank you, madam. Good evening, madam. Good evening. This is Nataraj Rai to attending the meeting. So due to preoccupied, I could not attend your meeting, but I sincerely thank you on behalf of ISTD for this session. I have attended one of his session in Kolkata sometime back, and I have learned lot of things from you. Thank you once again, madam. We'll meet sometime again in anywhere in Kolkata or Delhi anytime, madam. अच्छा, अपना ध्यान रखना सब। Yeah. Yes, Thank you. sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. On ISTD Navi Mumbai chapter, we wish to extend honorary membership to you. Ma'am Yeah, has sure, left. Yes, left. Okay. So thank you so much to all. Thanks to all the attendees here, and I'm really very sorry we could not take up all the